हमारा जो भी बोझ प्रभु ने हमारे ऊपर डाला है वो उसके उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे. So we pray according to the burden that God has given us, and God always gives us burden. And burden is to have a very nice thing, to have the burdens of God, not the burdens of this world. प्रभु की बोझ ये अच्छी है और दुनिया की बोझ बहुत ही भारी होता है, हमको बहुत ही उदास और तो नीचे लेके आता है. So Jew is on the line. Yes, brother. Okay. So we will come to this verse in what Jesus said in Matthew chapter 11. हम मत्ती के 11 अध्याय में जाएंगे. Verse 25. 25 वचन. At that time Jesus answered and said, I praise thee, Father, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and the intelligent, and didst reveal them to babes. 25 वचन. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है. Verse 26. Yes, Father, for thus it is well pleasing in thy sight. 26 वचन. हाँ हे पिता, क्योंकि तुझी को यही अच्छा लगा. Jesus said a very short prayer to the Heavenly Father, thanking him for all this, the ways of God. और यीशु मसीह ने बहुत ही छोटा सा यहाँ पर प्रार्थना किया और धन्यवाद दिया कि परमेश्वर के तरीकों के लिए. God who has made this whole earth and the stars and the sun and everything that we see, he said God hides things from the wise and the intelligent. परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया है, उस यहाँ पर लिखा है कि बड़ी बड़ी बातों को ज्ञानी और समझदारों से छुपा करके रखा है प्रभु ने. And God reveals them to babies. और बालकों के ऊपर उसको प्रकट किया है. Why does God do like that? और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Has not God given us wisdom and intelligence? क्या परमेश्वर ने हमें बुद्धि नहीं दिया है? And why does God tell his ways and show his plans to only babies? तो परमेश्वर ने जो उनकी योजनाएं हैं सिर्फ बालकों के ऊपर प्रकट क्यों की है? Because once we get some intelligence, we try to use our own mind to reason out things and then act according to our own plans and our own thinking. जब हम बहुत समझदार हो जाते हैं तो फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, पर हम जो सोचते हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं. And to have wisdom is good. बुद्धि का होना अच्छी बात है. But there is a lot of worldly wisdom. पर बहुत सारी सांसारिक बुद्धि होती है. The Bible says the wisdom of this world is foolishness towards God. और बाइबल ऐसा कहती है कि जो संसार की बुद्धि है वो मूर्खता है. And what is the wisdom of this world? और इस संसार की जो बुद्धि है वो क्या है? That you should be rich and should be famous. कि तुम्हें अमीर होना है और तुम्हें बहुत फेमस होना है. And then you will be very happy. और तो तुम बहुत खुश होंगे फिर. So that is what all the people in this world, we learn in all our management studies. Everywhere we are being taught this from the childhood, that to be rich and to be famous is very, very important. और कहीं पर भी हम जाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, हमें बस यही सिखाया जाता है कि अमीर होना, प्रसिद्ध होना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. But the Lord tells us that to do His will is the most important. पर प्रभु हमसे कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. And we know as small children, small babies and very small children below the age of 2, they always listen to their parents. और हम जानते हैं जो 2 साल से भी जो छोटे बच्चे होते हैं हमेशा अपने माता पिता की सुनते हैं. And they know their parents love them and that's why they obey them. और वो जानते हैं कि उनके जो माता पिता है उससे प्यार करते हैं और वो उनकी आज्ञा को भी मानते हैं. And they trust them very much. और वो विश्वास भी बहुत रखते हैं उन पर. The same way we also should trust the Heavenly Father for all our needs. और इसी तरीके से हमारे स्वर्गीय पिता पर हमें विश्वास रखना है सारी जरूरतों के लिए. And we will believe that He works everything for our good.
और हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए सब भले को लेकर आ रहे हैं। All the things that happen in my life every day God is working for my good. जो भी कुछ मेरे जीवन में प्रतिदिन हो रहा है, परमेश्वर सब कुछ मिलकर के भलाई को लेकर आएंगे। Because of that, I'll be thankful to God. और इसी के कारण परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना है। That is why small children and babies are very happy. इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं हमेशा। When the baby is in the arms of the mother, the baby is very happy. जब जो छोटा बच्चा होता है उनकी मम्मी के गोद में होता है तो वो बहुत खुश होता है। So the same way, when we are close to the Lord, we are trusting our Lord, we are also very happy. तो इसी तरह से जब हम प्रभु के करीब होंगे तो हम भी बहुत खुश होंगे। We heard that song. We say there is joy in the presence of the Lord. और हमने इस गीत को सुना कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद हो। So there is no joy away from the presence of the Lord. और कोई भी आनंद नहीं होगा अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी तो। There will only be sadness and doom. और सिर्फ दुख होगा और तकलीफ होगी। So all the sadness comes in our life and all the depression comes because we are far away from the Lord. और सारा दुख और जो तनाव हमारे जीवन में आता है क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं। Because we have not become like little babies and trusting the Lord. और क्योंकि हम एक छोटे बालक के समान नहीं बने हैं और हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं। That is why Jesus said that, Father loves people who are like little babies. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि जो परमेश्वर जो है ऐसे लोगों से प्रेम रखते हैं जो छोटे बालकों के समान हैं। God has plans for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं। And these plans are always for our good. और ये सारी योजनाएं हमारे भले के लिए है। Jeremiah chapter 29. और यिर्मयाह के 29 अध्याय में जाएंगे। Verse 11, 12, 11 वचन and 13. 11, 12 और 13 वचन। For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। Yes, the Heavenly Father is saying that God has a plan for each one of our lives. We are very special. Each one is very special in the eyes of God. और परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि हम में से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। And God always thinks good for us. Whatever bad we have done, God always wants the best for us. और परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भला सोचते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भला करना चाहते हैं। He wants to give us a future, a good future and a good hope. और परमेश्वर हमें एक अच्छा भविष्य और आशा देना चाहते हैं। He doesn't want to punish us for all the bad things that we have done in the past. और परमेश्वर हमें दंड नहीं देना चाहते जितने बुरे काम हमने हमारे जीवन में किए हैं उनके लिए। And when we know that God is such a loving Father, we will say, "Yes, Lord, I'll come to you and listen to you." और हम जब जानते हैं कि इतना प्रेम करने वाला पिता है हमारे पास, तो हमें कहना है, प्रभु हाँ, मैं आपके पास आऊंगा और आपकी बात को मानूंगा। But then the Bible says we will call upon the Lord. और फिर यहाँ पे वचन कहता है कि मैं प्रभु को पुकारूंगा। And we'll pray to him. और हम उसके से प्रार्थना करेंगे। Calling means shouting from our heart, "Lord, I come to you just as I am. I thank you that you're going to do everything for my good." और पुकारने का मतलब ये है कि खुले मन से परमेश्वर के पास आना और प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपके पास आया हूँ और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। There should be a cry from our heart. और मन से एक पुकार होनी चाहिए। Earlier we had a cry, "Lord, I want to become rich. I want to go have a good job. I want to get married. I want to have a baby." और पहले जो हमारी पुकार होती थी, प्रभु मुझे अमीर बनना है, मुझे शादी करनी है, मुझे अच्छा जॉब चाहिए और एक बच्चा चाहिए। Oh Lord, to take away the sickness of my life. और सारी बीमारियों को प्रभु मेरे जीवन में से दूर ले जाइए। That is the cry that we used to, all people in this world cry for these things. और ये एक पुकार है जो हर एक दुनिया का व्यक्ति होता है, वो यही बात के लिए पुकारता है। But when we know that God is loving and good, we say, "Lord, please show me what is your will
God, let me walk in your will and show me your plan. पर हम जानते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम रखते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर से पूछना है, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ। And we'll pray to him for the strength to know the will of God and to walk in the will of God. और परमेश्वर से हम सामर्थ को मांगे कि प्रभु मैं आपकी इच्छाओं को जान सकूं और आपकी इच्छाओं पर चल भी सकूं। And then the Bible says, the Lord says in verse 12, I will listen to you. और फिर 12 वचन में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें सुनूंगा। If I'm crying to God for all the worldly things, then the Lord will not listen to me. अगर हम सांसारिक वस्तुओं के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु हमें नहीं सुनेंगे। But we say, Lord, I want to do your will. Whatever your will is, I'll do it. पर अगर हम कहें कि प्रभु मैं जो आपकी इच्छाओं को मानना है, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। I don't want to do my plan. I want to walk in your plan. मुझे अपनी जो योजना है उसे पूरा नहीं करना है, मुझे आपकी योजना को पूरा करना है। When we think of our own plan, that is, our plans are not God's plans. जब हम अपने योजनाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारी योजनाएं जो होती है वो परमेश्वर की योजनाएं नहीं है। We have to fit in the plans of God. और हमें जो परमेश्वर ने योजना बनाई है उसमें आना है हमें। Isaiah chapter 55 verse 8. यशाया 55 अध्याय verse 8. 8वां वचन। For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। Verse 9 says, for as heavens are high above the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. 9वां वचन, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। So we are supposed to listen to the thoughts of God and the plans of God. और हमें जो है परमेश्वर की इच्छाओं को और परमेश्वर के विचारों को सुनना है। All our thoughts and our plans are influenced by the people of this world. और हम जो है हमारी जो सारी योजनाएं होती है और सारी सोच विचार होते हैं इस संसार से प्रभावित होते हैं। That is why in every small thing we have to say, Lord, what is your will in this? What is your plan? How should I do these things? We have to always ask the Lord. और इसलिए हर बात में, हर चीज में हम परमेश्वर को बोलना चाहिए, प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या योजना है इस बात में। And then we will seek God and pray to him to find his will. और फिर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उसे ढूंढेंगे उसकी इच्छा को जानने के लिए। Verse 6 says, seek the Lord while he may be found and call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and he will have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. 6 और 7 वचन, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। When is the Lord near to us? परमेश्वर हमारे करीब कब होते हैं? When can we find the Lord? कब हम परमेश्वर को पा सकते हैं? In all our distresses and our problems, when we come, we don't know what to do. We must always turn to the Lord. जब हमारी बहुत सारी मुसीबत, तकलीफ, परेशानी होती है, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, तो हम परमेश्वर की ओर फिरें। We sing that song, where can I go but to the Lord? हम उस गीत को गाते हैं क्योंकि मैं कहाँ जाऊं पर बस परमेश्वर के पास। There are many believers who go to this person and that person, to their friends, relatives, pastors, and all these. They run to the Lord, run to all these people rather than going to the Lord. बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और इधर उधर पासवानों के पास भागते हैं परमेश्वर के पास जाने की बजाय। First, we have to go to the Lord, say, Lord, show me what is to be done. और सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है, बोलना है, प्रभु अब मुझे बताए कि करना क्या है। Pour your burdens to the Lord because Jesus is our personal savior. परमेश्वर के ऊपर अपने सारे बोझों को डाल दे क्योंकि परमेश्वर जो है यीशु मसीह जो है हमारे उद्धार करता है। He is your personal friend. हमारे व्यक्तिगत दोस्त हैं यीशु मसीह। And he wants to have personal fellowship with you. और यीशु मसीह के साथ हमारी एक व्यक्तिगत संगति है। All the Bible says, all will know me in the new covenant from the least to the greatest. और वचन में लिखा है जो छोटे से लेकर बड़ा होगा वो सब मुझे जानेंगे। So you and I can come at any time to the presence of the Lord and humble ourselves and come before God. और आप और मैं कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं अपने आप को नम्र करके। And Jesus is our friend, our brother and our savior.
और यीशु मसीह जो हैं हमारे मित्र हैं, हमें छुड़ाने वाले हैं और बचाने वाले हैं। And he was so humble and he is so childlike. He will teach us how to seek the will of God. और यीशु मसीह जो है एक बालक के समान और बहुत ही नम्र हैं, और प्रभु हमें सिखाएंगे ये सब चीजें। Jesus said, "Come to me, all you are weary and heavy laden, and I'll give you rest." और यीशु मसीह ने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। When we are so much of heavy laden and there is so much of we are tiredness in our life, that is the time we must go to the Lord. और जब हमारे पास बहुत सारे बोझ से दबे हुए हम रहते हैं, तो हमें वही समय होता है जब हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। And as Jesus invites us, we must accept the invitation and go. और जब यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं, तो हमें उनका निमंत्रण स्वीकार करके जाना चाहिए। And then the Lord will give us peace and rest. और फिर परमेश्वर हमें शांति और शांति देंगे, आराम So देंगे। that is a wonderful thing. The Lord knows we are very restless people. और ये बहुत एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर जानते हैं कि हमारे अंदर बिल्कुल शांति नहीं है। Why we are so restless is because we just want to do what we like. और हम इतने हमारे अंदर शांति इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो चाहते हैं हम वही करते हैं। We do our own plans and own thoughts. हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं। That is why we become very tired and heavy laden. और इसीलिए हम बहुत थक भी जाते हैं और बहुत सारा बोझ हमारे ऊपर होता है। Just like Martha was there, she was doing her own thing for the Lord, but she was getting so restless. और जैसे कि मार्था जो थी वो बहुत सारा काम कर रही थी प्रभु के लिए, पर बहुत अशांति में थी। But Jesus said in verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me." पर यीशु मसीह ने कहा कि अपना जुआ मेरा जुआ तुम्हारे ऊपर लो और प्रभु सॉरी ब्रदर वर्ड And learn from me. और मुझसे सीखो। So that is, we have to walk with the Lord, and every day the Lord is there with us. Say, Lord, what will you do now? How can I do this? What decision should I take in this matter? और हमें परमेश्वर को पुकारना है, बोलना है कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे हर बात में परमेश्वर की इच्छा को जाने। Even the smallest thing, how should I speak? How should I think? सबसे छोटी बात कि हम कैसे बात करें, कैसे सोचें। He said, "Learn from me." यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखें। Not, and we take time to learn because we're so used to doing our own ways and will. हमें समय लगेगा सीखने में क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और अपने रास्ते पे चल रहे हैं। But the Lord is very patient with us. पर परमेश्वर हमारे साथ बहुत धीरज धरते हैं। And even we have failed so many times, 1,000 times, and the Lord is still said, "Please, come to me, I will teach you." हम हजारों बार भी अगर फेल हो जाते हैं तो भी परमेश्वर हमें सिखाने के लिए तैयार है। There are many teachers in schools, they get fed up of teaching their children because they are not making so many mistakes over and over again. और बहुत सारे जो टीचर्स होती हैं स्कूल में, वो परेशान हो जाती है सिखा सिखा के, क्योंकि बच्चे बार बार गलती करते हैं। But the Lord is not troubled. He says, "Come, whatever you made the mistake, same mistake for 1,000 times, still you can come to me." पर हम चाहे 1000 बार भी गलती करें, प्रभु जो है परेशान नहीं होते और प्रभु हमें बार बार बुलाते हैं। That is why we can have encouragement and hope for our lives. इसलिए हमारे पास प्रोत्साहन है प्रभु का हमारे जीवन में। And Jesus said, "He is gentle and humble in heart." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दीन और मन में नम्र हूँ। And I'll also teach you how to become gentle and humble. That means be quick to obey. और प्रभु ने कहा कि कैसे तुम्हें नम्र और दीन बनना है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसका मतलब ये तुरंत हम आज्ञा का पालन करेंगे। Humble person always obeys God. और जो नम्र व्यक्ति होता है हमेशा आज्ञा का पालन करता है प्रभु की। Proud people only do what they like. और जो घमंडी व्यक्ति होता है वो हमेशा खुद जो चाहता है वही करता है। So Jesus always did like that, so we can learn from Jesus. और यीशु मसीह ने हमेशा ऐसा ही किया, इसलिए हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। So in all our practical situations of life, in how we speak, how we do things in our home and in our workplace, in the church, we must say, "Lord, how did you do this? Please show me by your Holy Spirit." और जो भी हमारा व्यवहारिक जीवन है, कहीं पर कलीसिया में, हमारे ऑफिस में, कहीं पर भी जब रहते हैं, तो हम प्रभु से पूछ सकते हैं प्रभु मैं क्या करूं। When I obeyed this, I found that I got so much rest in my soul. जब मैंने इन सब बातों को पीछा किया तो मैंने देखा कि मेरे प्राण में मुझे बहुत शांति मिली। There are so many problems that comes to our lives, sometimes all of a sudden. कई बार ऐसी बहुत अचानक से बहुत मुसीबत आ जाती है जीवन में। And then we must run to the Lord. "Lord, what shall I do?" तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, प्रभु मैं क्या करूं। And we'll remain quiet before God. और हम परमेश्वर के सामने शांत रहें। A humble man is a quiet man. और जो नम्र व्यक्ति होता है हमेशा शांत रहता है। He does not keep on arguing and quarreling with other people. वो लड़ता झगड़ता या फिर बहस नहीं करता।
And because of that, there'll always be peace in his heart. और इसी कारण से उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। And in that peace, the Holy Spirit can guide us. और ऐसी शांति में पवित्र आत्मा हमें निर्देशित कर सकते हैं। That is why we must never enter into any argument with people. इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहिए। And when our mind is disturbed, we must not take any decision. जब हमारा दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा हो तो हमें कोई निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। So, but we must wait upon the Lord, and our heart is at rest when the Holy Spirit will tell us what to do. जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। We must say, Lord, I don't want to do my will. Any time I don't want to do my will, I want to do your will only. हमें परमेश्वर से हर समय बोलना है कि प्रभु मैं कभी भी अपनी इच्छा को नहीं परंतु सिर्फ आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। And such a life is very easy. It's an easy life. It says, verse 30, my yoke is easy and my load is light. और ये जो जीवन होता है बहुत आसान जीवन है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो जुआ है और जो मेरा बोझ है वो बहुत हल्का है। So when you're following the Lord is not a very difficult thing in spite of all the problems and persecutions that face. It always gives us peace and rest and joy. और प्रभु का पीछा करना चाहे कितनी दुख तकलीफ मुसीबत आए हमेशा शांति और आनंद की बात होती है। And that is why the life following Jesus Christ is always an encouraging life. It's not boring. और जब भी हम यीशु मसीह का पीछा करते हैं वो जीवन बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित होता है, बहुत उबाऊ नहीं होता। The life of a backslider is always boring. और जो पीछे हट जाते हैं प्रभु से उनकी जो जीवन होता है बहुत उबाऊ होता है। There is a beautiful verse in Proverbs 14:14, very easy to remember. For Proverbs 14 verse 14. और जो नीति वचन 14:14 का एक वचन है। It says, the backslider in heart will have the fill of his own ways, but the good man will be satisfied with his. Yes, brother. Proverbs 14:14. हाँ, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है परंतु मनुष्य आप संतुष्ट होता है। It says the life of a godly man, a good man, is always happy and it is exciting. और यहाँ पे वचन कहता है कि जो brother please repeat. The life of a godly man, a good man, who follows the Lord is always exciting. Is always happy in everything that he does. और जो ईश्वरीय व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने जीवन में खुश होता है। But the life of a person who is backslidden, who goes away from the Lord, is always very boring. और जो व्यक्ति जो होता है जो प्रभु से पीछे हट जाता है वो हमेशा एक उबाऊ जीवन जीता है। Because God is showing us every day His will, new things, how to follow the Lord, how to think, how to speak, and how to do things according to His will. और प्रभु हमें प्रतिदिन सिखा रहे हैं कि कैसे बोलना है, कैसे उसकी इच्छा को पूरा करना है हमारे जीवन में। For example, if we have a very good teacher, we are all very happy. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास बहुत अच्छा एक शिक्षक है पढ़ाने के लिए तो हम बहुत खुश रहते हैं। If we have a bad teacher or if we don't have any teacher and we are the ones who are teaching ourselves, we make a lot of mistakes. और अगर हमारे पास कोई टीचर ही नहीं है तो फिर या फिर वो बहुत बुरा टीचर है तो हम बहुत बोर हो जाते हैं। The Lord is so loving. He wants to teach us. He wants to help us. पर प्रभु जो है हमसे प्रेम रखते हैं, हमको सिखाना चाहते हैं। We can go to Him with every problem in our heart and tell Him, Lord, I want to do your will. Let your will be done in my life. और हमारे जीवन की हर एक मुसीबत को लेकर हम प्रभु के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं प्रभु मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना है। And if there is anything wrong in my life, point it out so that I can change it. और अगर मेरे जीवन में कोई बुरी बात है तो उसे निकालिए ताकि मैं उसे बदल सकूं। If any worldly desires are there in my life, Lord, I want to change those worldly desires. अगर मेरे जीवन में कोई सांसारिक बातें हैं तो प्रभु मुझे बदलना है उन बातों को। If I love the things of this world, if I love worldly things and so many clothes and worldly programs on the television or on the YouTube or anything, Lord, I want to change my decision. I want to follow you and to please you. अगर मेरे जीवन में सांसारिक बातें हैं, बहुत सारे टीवी के प्रोग्राम्स या यूट्यूब की चीजें मुझे अच्छी लगती है तो प्रभु मुझे बदलिए, मुझे आपका पीछा करना है। And if I want to really think high thoughts about myself, I'm very proud. Lord, help me to humble myself and think that I'm nothing because my life is just so short. I must not think high thoughts about myself. प्रभु अगर मेरे जीवन में अगर बड़े बड़े विचार हैं, बहुत घमंडी विचार है तो प्रभु मुझे बदले क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, मुझे ऐसे बड़े विचार अपने लिए नहीं रखने।
So as we sang the song, मैं सब कुछ देता हूँ, I surrender all. We must give our life completely to the Lord, and the Lord will bless us, and we will be the happiest people. और जैसा कि हमने वो गीत गाया कि प्रभु मैं आपको सब कुछ देता हूँ, अपने जीवन को प्रभु को हमें समर्पित करना है। Jesus was the happiest man who lived on this earth. प्रभु यीशु मसीह जो थे सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति थे जो इस संसार में रहे। And when we walk with them, we also will get the same happiness. अगर हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो वैसी ही खुशी हमें भी मिलेगी। If we don't walk with them but walk with the world, we'll get some temporary happiness. After that, we will become very sad and depressed. अगर हम इस संसार के साथ चलेंगे तो हमें बहुत छोटे समय के लिए खुशियां मिलेगी और वो फिर चली जाएगी। So dear brothers and sisters, let us come to the Lord in all our problems. The Lord is very close to us. और प्रभु के पास आए भाई बहनों, अपने हर एक समस्या में परमेश्वर हमारे बहुत करीब है। He never rejected anybody who came to him. प्रभु किसी को भी नहीं ठुकराते जो उनके पास आता है। People came to him with their sicknesses, with their problems and difficulties. The Lord helped them to follow, showed them the ways of God. और प्रभु के पास जो बीमार थे, दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी में थे, सब लोग आए, प्रभु ने उन्हें चंगा भी किया और प्रभु का मार्ग बताया। Jesus is the most loving and kind person. यीशु मसीह जो है सबसे ज्यादा प्यार करने वाले और दयालु व्यक्ति हैं। So we can have confidence in him and throw away all our burdens and put it on him. और हम हमारे सारे बोझ को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर डाल सकते हैं। Amen. So let us pray now, brothers and sisters. We can pray for ourselves, our family members, and अपना बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि सब प्रभु के संगति में आ सकते हैं, आए और प्रभु की फेलोशिप पाए, की संगति पाए। और जब हम प्रभु की संगति में आ जाएंगे, हमारा पूरा हम परिवार भी, तो प्रभु हमारे जीवन की हेड बनेंगे, सर बनेंगे और वो हमारा सब संभालेंगे। अब तक संभाला है हमारा जीवन। हम भी कई काम करते हैं, we do so many things according to the Lord says ये तो change करो, we will definitely change. And God allows problems to come into our life. जीवन में समस्या आता है कि हम प्रभु की और द्वार आ जाएं, और समस्या में हम प्रभु के पास ही आना चाहिए। कलीसिया में, फैमिली में, अपना व्यक्तिगत जीवन में, अपना जॉब प्रॉब्लम में, सब तो प्रभु की संगति में रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति रहेंगे, रेस्ट लेंगे। हम बिल्कुल रेस्ट में हर चीज, और फ्यूचर के लिए हम लोग को टेंशन नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि प्रभु हमको दिन प्रतिदिन चला रहा है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा जो कुछ बोझ है, जो बीमारियां है, प्रभु के ऊपर डाल देंगे और धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने, हालेलुया प्रभु, मैं आप अपना मेरा जीवन संभाल रहा है। आप हमारा जो कुछ भी प्रॉब्लम, उसका समस्या जरूर करेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे। हमारा बीमारियां में है, जॉब का प्रॉब्लम है, जरूर प्रभु will definitely give me at the right time. As it says, he makes everything beautiful in his time. वो एक उनके टाइम में सब कुछ सुंदर बनाते हैं।